Dear friends, welcome to Help TV and lecture series of the Electrical Engineering. आज हमारा बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 5 है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था बेसिक सर्किट एनालिसिस क्या है और उसके कुछ एलिमेंट्स हमने देखे थे। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं, अब हम आहिस्ता आहिस्ता कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे और कुछ सर्किट एनालिसिस के डेप्थ में जाएंगे। तो आज का हमारा बेसिक टॉपिक है एनर्जी सोर्सेस। सर्किट एनालिसिस में कौन से एनर्जी सोर्सेस हैं, कौन से डिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेस हैं, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स को सीरीज और पैरेलल में किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बेसिकली सोर्सेस होते हैं। सोर्सेस, there are two type of sources. One is voltage source, another is current source. There are two types of the sources. In voltage source, ये एक ऐसा सोर्स होता है जो कि आपको कांस्टेंट वोल्टेज देता है इररिस्पेक्टिव टू करंट, जबकि ये जो करंट सोर्स होता है ये आपको कांस्टेंट करंट देता है इररिस्पेक्टिव टू वोल्टेज। Okay, there are basically two types of the sources. Okay, in voltage source there are basically two types of the sources: invariant voltage source and variant voltage source. There are basically two types of the sources. In invariant voltage source, voltage not change with respect to time is called invariant voltage source. This invariant voltage source is also called DC voltage source. Is also called DC. And in variant voltage source, voltage is changed with respect to time. This voltage source is also called AC voltage source. Is called AC voltage source. Okay. The waveform of the DC and waveform of the AC voltage source is this is constant. This is VL. Voltage across the load is constant, not change with time. And in AC voltage source, current voltage is changed with time. This is T and this is voltage. This is called voltage source in AC voltage source. There are basically two types of the voltage sources. अब हम डिस्कस करते हैं करंट सोर्स को. What is current source? So there are basically two types of the current sources, same as voltage source. The first type of the current source is invariant current source. Current source is invariant current source. Invariant current source. Another one is variant current source. Variant current source. There is difference between the variant and invariant current source. Okay. So you must know about the difference. In basic circuit analysis, if you understand the basic concepts, then you can build your advanced studies in a very efficient manner. Okay? So I think you have to understand the basic concepts. आपको समझना चाहिए, आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आ गए हैं तो आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझना एडवांस से भी ज़्यादा है, ज़रूरी है। तो इनवैलिड करंट सोर्स आपके पास वो करंट सोर्स होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कि ऐसा सोर्स जो कि टाइम की रिस्पेक्ट से चेंज ना हो रहा हो, उसको हम कहेंगे इनवेरिएंट करंट सोर्स। सेम एज
I discussed previously. I and T and this IL. This is called invariant current source. ऐसा सोर्स जो कि टाइम की रिस्पेक्ट से चेंज हो रहा है उसको हम कहेंगे वेरिएंट. ये क्या आ गया? वेरिएंट करंट सोर्स. There are basically difference between variant and invariant current source. Okay, this is the basic concept. Invariant जो होता है वो बेसिकली डीसी करंट सोर्स होता है, इसको हम क्या कहेंगे? डीसी. और वेरिएंट करंट सोर्स जो होता है बेसिकली होता है एसी करंट सोर्स, इसको हम क्या कहेंगे? AC current source. Okay, so this is the basic concept of the sources in a very simple and efficient way. So you can easily understand what are sources, what are the basic type of the sources. So अब तक हमने क्या सीखा? सोर्सेस क्या होते हैं, एनर्जी सोर्सेस क्या होते हैं, ओके, जो कि हमें रिक्वायर्ड होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स को ऑपरेट करवाने के लिए, वो होते हैं एनर्जी सोर्सेस. उसके बाद हमने देखा कि कौन सी टाइप्स हैं एनर्जी सोर्सेस की. हमने देखा कि वोल्टेज सोर्स होते हैं और करंट सोर्स होते हैं. उसके बाद हमने देखा और सीखा कि वोल्टेज सोर्स की कितनी टाइप्स होती हैं और उनमें डिफरेंस क्या है. फिर हमने सीखा कि करंट सोर्स की कितनी टाइप्स होती हैं, उसमें डिफरेंस क्या है. अब हम सीखने जा रहे हैं डिपेंडेंट सोर्सेज को, ओके, जो कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, जो कि आपके लिए समझना जरूरी है बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करने के लिए. सो अब हम डिस्कस करेंगे डिपेंडेंट करंट सोर्सेज को और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज को. अपने जो सोर्सेज से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनको और ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखने के लिए, सर्किट एनालिसिस में स्ट्रॉन्ग होने के लिए और उसमें 100% लर्न करने के लिए हम अब सीखेंगे डिपेंडेंट सोर्सेज को. डिपेंडेंट सोर्सेज कौन से होते हैं? अब हम सीखेंगे डिपेंडेंट सोर्सेज को. देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ द डिपेंडेंट सोर्सेज. ओके, द फर्स्ट इज voltage dependent voltage source. ओके, पहले हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, देन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वोल्टेज सोर्सेज को और करंट सोर्सेज को. ओके, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डिपेंडेंट वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्सेज होते क्या हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिपेंडेंट सोर्सेज को देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे करंट सोर्स पे जाएंगे, वोल्टेज सोर्स पे जाएंगे और फिर देखेंगे कि वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं. वोल्टेज सोर्स आपको बेसिकली डिपेंडेंट वोल्टेज ये होता है कि जिसकी वैल्यू डिपेंड कर रही हो वोल्टेज और करंट पे इन द सर्किट. ओके, ऐसा सोर्स जिसकी वैल्यू किसी और वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स पे डिपेंड कर रही है उसको हम कहेंगे डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. अब वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या होगा कि ये एक ऐसा सोर्स होगा जो डिपेंड करेगा किसी और वोल्टेज पर. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V1 is equal to K1 K2 times V2. ओके, ये किसी और वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है जो कि आपके सर्किट में यूज हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि सर्किट एनालिसिस में आप एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स को यूज कर सकते हैं, एक से ज़्यादा करंट सोर्सेज को यूज कर सकते हैं और एक से ज़्यादा सर्किट एलिमेंट्स ब्रांचेस को यूज कर सकते हैं. तो कॉम्प्लेक्स सर्किट एनालिसिस में, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा. इसलिए मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को बेसिक से क्लियर करता जा रहा हूँ जो कि आपके लिए समझना जरूरी है. अब सेकंड जो डिपेंडेंट सोर्स है वो है वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स. वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये V1 वोल्टेज सोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है V2 पे. इसी तरह जब वोल्टेज V1 डिपेंड कर रहा होगा
I2 पर, तो उसको हम कहेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। ऐसा वोल्टेज सोर्स है जो डिपेंड कर रहा है करंट पर, उसको हम कहेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। थर्ड वन इज करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है ऐसा करंट सोर्स जो कि किसी और करंट पर डिपेंड कर रहा है, उसको हम कहेंगे करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। फॉर एग्जांपल, I1 इक्वल टू K2 टाइम I2, ये क्या हो गया आपके पास? करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। सेम कॉन्सेप्ट एज वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्सेस। नेक्स्ट फोर्थ वन इज करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स ऐसे सोर्सेस होते हैं जो कि वोल्टेज पे डिपेंड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, I1 इक्वल टू K2 टाइम्स V2। आपके सर्किट में जो V2 वोल्टेज है उस पर डिपेंड कर रहा है आपका करंट सोर्स। तो ये थे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस जो कि आपके लिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉम्प्लेक्स सर्किट को एनालाइज करने के लिए। और आज हमने देखा कि वोल्टेज सोर्स क्या होता है, करंट सोर्स क्या होता है, डिफरेंस क्या है, टाइप्स ऑफ द करंट सोर्स, टाइप्स ऑफ द वोल्टेज सोर्स एंड डिपेंडेंट सोर्सेज, व्हाट इज डिपेंडेंट सोर्स एंड व्हाट आर द बेसिकली टाइप्स ऑफ द डिपेंडेंट सोर्सेज। इन सब को आज हमने डिस्कस किया, इन सब में हमने आज डिफरेंस किया और हमने देखा कि ये सर्किट एनालिसिस में कैसे यूज होते हैं। उम्मीद है आपको इस लेक्चर में से कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी हमारी मिल जाएगी, हम आपको इंस्टेंटली रिप्लाई करेंगे। हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी आपकी लर्निंग में, आपकी प्रोग्रेस में, सो दैट कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें और कुछ सीख सकें। अगर आप हमारी नए लेक्चर्स की अलर्ट्स हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी, आपको आसानी होगी हमारे लेक्चर्स से सीखने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड। थैंक यू।